guys, welcome to my channel and welcome to today's video. A chit chat, lazy, casual, chit chat kind of a video. I just finished shooting a video, my camera is dead, so I thought that I'll film on my phone, but my phone battery is also running out. Does it happen with you? I mean, I'm so lazy to charge my phone, but anyway. Tell me how you guys are, how you've been, how is your life going, and what's happening in life. I know I have so many of my old friends here on YouTube, like मेरी बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स जिससे मतलब हमने काफ़ी दिल की बात भी शेयर की है ओवर ईमेल, एंड आई नो सो मैनी ऑफ यू पर्सनली लाइक थ्रू यूट्यूब ओनली, बट वी हैव शेयर्ड लाइक our personal problems and anything or everything that is close to our heart. So I think बीच में थोड़ा सा touch ख़त्म हो गया था हमारा, because after my father passed away I was not really that motivated to shoot videos, and today I don't know, ironically today is also March of 27th, and today I feel so motivated. I don't know, it just happens that on this day particularly I come here and talk to you guys. But today I feel really motivated. I've been shooting a lot, I've been doing a lot of videos lately, and I have just finished shooting a video, and even though it is like 1 o'clock in the morning, I'm going to edit that video, schedule it for tomorrow, and then decide for tomorrow's video. So whenever you're watching my video, just रिमेंबर कि वो वीडियो या तो आज शूट हुई होगी या कल शूट हुई होगी. मैं ज़्यादा दिन पुरानी वीडियोस एडिट नहीं कर पाती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. आई लूज टच, आई लूज बेस, एंड दैट ऑर्गेनिक एलिमेंट ऑफ द वीडियो गोज अवे. सो अगर मेरी बहुत कोई पुरानी वीडियो पड़ी होती है, इफ़ इट इज़ नॉट अ व्लॉग, देन आई डिलीट दैट एंड आई शूट अगेन. मुझे ऐसे लगता है कि एवरी डे आई चेंज. सो मुझे ऐसे लगता है फिर एक हफ्ता पुराना शूट किया वीडियो बहुत पुराना हो गया, सो माइट इज़ वेल न्यू वीडियो शूट करो. एनीवे, सो एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन चल रही है. 2 months के बाद मेरा एग्ज़ाम है, सो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दैट. आई हैव जस्ट 3 attempts left, 3 attempts and 3 years, so I don't have a lot of time. So I'm trying my best for this UPSC exam, and if that doesn't work out, then of course I'll be here on YouTube if YouTube is there, or else of course कुछ ना कुछ तरीका तो होगा. You'll be updated about what's happening in my life, but that's the plan. If you're a new subscriber, let me just quickly tell you that YouTube is my part-time job, and I do this job in order to sustain and pay my bills. But basically I'm studying and preparing for IAS. I want to become an IFS officer, give the UPSC Civil Services examination. So I'll be taking the exam this year, and I don't know if I'll be able to clear it, but yeah, I'm working hard on that. Anyway, so that is happening. Then I have future plan. I always wanted to write a book, so I'm working on that as well. I have already started to think about the plot, and ever since I was in school, I always knew that I will be having my own book one day, a binded, printed, proper, published book. I don't know how far that I can accomplish, but I have already started working on that. So that was my dream, that is still my dream. I have always wanted to become a writer, even though I do not have that knack for it, but I have always enjoyed reading books. So I was kind of inclined towards writing here and there, not so much, and not really good stuff, but yeah, I see myself writing a book someday, of course. Then I also want to try my hand at pottery. So one day probably I'll have my own pottery boutique, something, maybe an online store or something. I'm not really sure, but that really fascinates me. I see Magali doing a lot of pottery. Magali, if you don't know already, but she's an OG YouTuber. She's amazing with her work. Magali Vaz. So I'm so impressed by her Studio Bahia work. I love what she is doing, and I love how adventurous she is, and how creative she is with her work, and also how dedicated and motivated she is with her work. I really see myself buying her stuff and doing a haul for you, because I'm such a fan of pottery things, and I see myself doing the same. I always wanted, when I was young, I always told people कि जब मैं retire होंगी ना, when I retire and I don't have any formal work to do, you can find me somewhere near a beach having my own pottery boutique, or doing pottery. That is something you would see me, or writing a book. That is my idea of retirement, basically. So I have already made plans about my retirement without actually having worked my life. I mean, I'm nearing 30 now, but अभी मेरे कोई plans नहीं है life के. मेरी life बिल्कुल unplanned चल रही है,
और उसके बाद मेरे रिटायरमेंट के प्लान्स तैयार है. सो दैट्स हाउ लाइफ इज़ एक्चुअली. पहले मैं बहुत प्लानिंग करती थी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती थी, डायरीज़ में लिखती थी ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, यहाँ जाऊँगी, इतने बड़े ऑफिसर बनूँगी. फिर वैसा कुछ होता नहीं है लाइफ में. लाइफ जनरली सबकी ऐसी होती है कि जैसा आप प्लान करो उसकी उल्टी हो जाती है. बेसिकली बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ प्लान जाती है, आई बिलीव. और आई थिंक लाइफ का ब्यूटी भी यही है कि आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट देन स्टिल यू आर प्लानिंग एंड गॉड हैज़ अदर प्लान्स फॉर यू. बट वट एवर इज इट, थैंक गॉड, एवरीथिंग इज़ गुड एंड आई हैव बीन सो थैंकफुल टू गॉड. बहुत ज़रूरी होता है ग्रेटफुल होना लाइफ में. आपके पास जो है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो. आपके पास जो नहीं है उसके लिए ट्राई करो, पर जो है उसको कभी अंडरमाइन मत करो, कभी मत करो, बिकॉज शायद किसी के पास वो भी नहीं है. शायद जो आपके पास है और आप उसकी वैल्यू नहीं करते, शायद वो किसी का ड्रीम है. तो आपके पास जो है उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए. दैट इज़ समथिंग आई हैव लर्नड ओवर दिस पास्ट फ्यू ईयर्स. एंड बस पॉजिटिव होना चाहिए. समटाइम्स पॉजिटिव होने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं. पहले मुझे लगता था लोग क्या बोलते रहते हैं, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, ऐसे रहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है. पर बहुत फ़र्क पड़ता है व्हेन यू आर लाइक पॉजिटिव अबाउट अ थिंग. यू नो कि कोई बात नहीं, अगर ये बुरी सिचुएशन है कोई बात नहीं, पर इसमें ये पॉजिटिव बात है कि एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला. नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा. अगर आपने इतना ही सीख लिया किसी एक्सपीरियंस से, किसी बुरे एक्सपीरियंस से, आई थिंक दैट इज़ अ लाइफ लेसन. और उसके बाद आप पॉजिटिव रहोगे, आप उस चीज़ को भूल जाओगे, प्लस आप उसको उस एक्सपीरियंस को आगे जाके आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम लाइफ में मिस्टेक्स नहीं करेंगे और हमारे लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होंगे, तो ऑनेस्टली कोई लर्निंग भी नहीं होगी. सो दैट्स हाउ वी लर्न. एंड वेरी क्लीशेड, हम गिरते हैं तभी हम चलना सीखते हैं. तो लाइफ में मेरे बहुत ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता. पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स नहीं होते तो शायद मेरी लर्निंग नहीं होती, मेरी ग्रोथ नहीं होती. शायद मैं जहाँ हूँ, मे बी मैं बहुत बड़े मुकाम पे नहीं हूँ, पर मैं जहाँ हूँ शायद वहाँ भी नहीं होती. तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का होना, और प्रॉब्लम्स का होना, और गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है. कभी अपने आप को बुरा मत बोलिए, कभी अपने आप को कोसिए मत कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मुझसे ये गलती नहीं हुई होती. कोई बात नहीं, गलती हो गई, आपने इसे लर्न किया, आगे बढ़ जाओ. दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. एंड ईजियर सेड देन डन ऑफ कोर्स, बट आई थिंक लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक मैं अब इस सिचुएशन में इससे बेटर नहीं समझ पाती अगर मैं पॉजिटिव नहीं होती. तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स क्या होता है, मतलब अगर मॉनेटरी बात करें, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते. मॉनेटरी इसलिए बोल रही हूँ, शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे. और मेरे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ मेरे पास समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी पे करने का बिल नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई वाज ऑन माय ओन एंड आई वाज इंडिपेंडेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट. सो तब भी अब अपना होप लूज़ मत करो. कीप ऑन वर्किंग, इट इज़ जस्ट अ ट्रायल फेज. आप एज के किसी भी पड़ाव पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 16 के हो, 18 के हो, फ़र्क नहीं पड़ता. एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग, एज लॉन्ग एज यू हैव द ड्राइव टू गो ऑन, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड, एज लॉन्ग एज यू हैव अ ड्रीम, एज लॉन्ग एज यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, एंड एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू गिव इट what it takes, you're still young dude and you have a way to go. So that is one life lesson that I've learned. और अब तो मैं किसी फेलियर से डीमोटिवेट नहीं होती. हाँ, मैं गलत रिश्तों में नहीं पड़ना चाहती. मतलब मुझे मेरे घर के रिलेशनशिप्स और मेरे फ्रेंड्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स दैट आई हैव. But somewhere down the line, I have lost trust on people. Trust is a very difficult thing to earn. So मुझे लगता है कि न्यू फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है इस एज में. आई बिलीव आफ्टर यूर 25, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड relationships are even harder. And for a person like me, I don't want to just fall into a relationship for the sake of having a relationship. So I don't even think about relationships for that matter. But
I don't want to fall for the wrong person. That is one mistake I don't want to commit because I've already had my heartbreak and I want to move on. What do you think about my weight? A lot of people did comment, सना बहुत weight lose कर लिया है, क्या किया, कैसे किया? कोई crash diet नहीं किया guys. I am a person जो किसी diet पे believe नहीं करता. मैं किसी भी diet पे believe नहीं करती हूँ, ये खाओ वो खाओ वो खाओ. मैं सब कुछ खाती हूँ, दाल चावल. आज शाम को मैंने दलिया खिचड़ी बनाई थी. दलिया खिचड़ी में कुछ नहीं था. 1 पोर्शन मूंग दाल, 1 पोर्शन मसूर दाल एंड 1 पोर्शन दलिया. उसको मिक्स करके भिगा दिया था, उबाल दिया, उसमें 2 अंडे बॉईल करके डाल दिया. If you have palak, you can put whatever you want to, chicken, butter, whatever you want to, and just have it. And then I had curd, and I'm really enjoying घर का खाना because I think lockdown में एक सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना, स्विगी, जोमैटो, बस यही चलता रहता था. बट आई थिंक रियली ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है, बट आई थिंक ये जो डिलीवरी सिस्टम्स आ गए ना, 10 मिनट्स में डिलीवरी, 5 मिनट्स में डिलीवरी, ये बहुत हैंडी हो गया. इसकी वजह से पता है मैं फटाफट खाना मंगा लेती हूँ. जैसे मुझे कुछ बनाना ना, आई फील लाइक चलो आज आलू की सब्ज़ी बनाते, पर आलू तो है नहीं, तो लेट्स बाय आलू. तो लगता है अरे बिग बास्केट डिलीवरी 4 घंटे के बाद होगी या अगले दिन होगी, आपको स्लॉट नहीं मिला, तो फिर वो ना ड्राइव ख़त्म हो जाता था, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था खाने में. छोड़ो कौन इतनी मेहनत करने जाए, फॉरगेट इट, लेट्स ऑर्डर, ये वाला सिचुएशन था. बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट अ पेड कॉन्टेंट. ज़ेप्टो हैज़ मेड माई लाइफ रियली ईजी. आई होप ज़ेप्टो ऐसा ही रहे. मतलब 10 से 15 मिनट तक ठीक है, उससे ज़्यादा होता है फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता. आई विल डू अ ज़ेप्टो हॉल ऑल्सो. आई हैव डन हॉल फ्रॉम एवरी सिंगल वेबसाइट. आई थिंक नाउ I have over like 500-600 videos on my channel. Let me know if you want to see a grocery haul from Zepto. This video is literally all over the place, but I was just in a mood to talk when I cannot talk. I have a bad throat. If you don't know that, I was not well. तो मेरा आवाज़ चला गया, फिर वापस आ गया, पर वो पूरी तरीके से नहीं आया है और मुझे अभी बहुत खराश होती है. पर मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है. I can go on talking the entire night. Anyway, and I really love talking to you guys. तो अभी मैंने ईबा हलाल का वीडियो शूट किया है जो कि मुझे बहुत पसंद है. ईबा हलाल मेरे फेवरेट परफ्यूम्स में से एक परफ्यूम है, बहुत अफोर्डेबल सी. अभी भी यहाँ रखे थे. आई वाज जस्ट टेकिंग सम क्लोजअप शॉट्स की क्लोजअप करके फिर उसको एडिट करके मैं कल डाल दूँगी, बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे ज़ारा वीडियो के बाद कि आप प्लीज़ ईबा के वीडियो कीजिए. तो आई वॉज लाइक सबसे पहले ईबा हलाल की वीडियो करती हूँ. एक्सक्यूज़ मी. सबसे पहले ईबा हलाल की वीडियो करती हूँ, उसके बाद आई विल डू अनदर वीडियो. लाइक कुछ है आइडियाज़ माइंड में एंड जिससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा. आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा देर तक सॉरी गाइज, माई वॉइस इज़ टोटली गोइंग. आई डोंट वांट इट टू गो कम्प्लीटली. मैं अभी जाके फटाफट अदरक की चाय बनाऊंगी. मे बी आई हैव दैट वाइल आई एडिट माई वीडियो. और आप लोग मेरी वीडियोज़ प्लीज़ देखिए. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. इस वीडियो को मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है बिकॉज बहुत कमेंट्स आते हैं कि सना आपकी चीज़ें हम तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर है. अगर आपको लगता है कि मैं कंटिन्यू करूँ हिंदी वीडियोस के साथ तो प्लीज़ मुझे बताइए. हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, टोटली हिंदी नहीं होगी, टोटली इंग्लिश नहीं होगा. बट लेट मी नो कि आप कौन सी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो. बहुत कमेंट्स आते हैं एवरीडे बेसिस पे. तो मुझे लगता है कि अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज द लैंग्वेज बैरियर, देन इट इज़ नॉट डन. सो अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी वीडियोस को हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके बनाना चाहिए एक नॉर्मल तरीके से, तो मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी ताकि ये जो मेरे जो वीडियोज़ हैं जो आपके काम आ सकते हैं या मेरी वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प हो सकती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी. अपनी लैंग्वेज स्विच करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मुझे प्लीज़ बताइए. सो दैट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. अगर मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी कमेंट्स आएंगे कि येस यू कंटिन्यू इन हिंदी, देन हिंदी नहीं पर हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके आई स्टार्ट मेकिंग माई वीडियोज़ इन द फ्यूचर. ओके, मेरी बैटरी ऑलमोस्ट. सो गाइज माई फ़ोन बैटरी इज़ ऑल्सो रनिंग आउट. 10% बैटरी बची है. तो मुझे बोलने का बहुत शौक है. आई होप थोड़ी बैटरी ज़्यादा होती. अगर आपको ऐसे वीडियोस, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ मैं ऐसे चिट-चैट वीडियोस बनाऊंगी पर मुझसे हो नहीं पाता है बिकॉज कैमरा सेटअप करो, ये सब सेटअप करो, और वो आई एम जस्ट वन मैन आर्मी. मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है. मुझे पढ़ना भी होता है, घर का भी काम करना होता है, तो इतना मुझसे हो नहीं पाता है जैसे लोग स्टूडियो बनाते हैं और वो सब करते हैं. तो अगर आपको लगता है कि मैं फ़ोन पे कंटिन्यू करूँ तो मुझे ये ईजी होगा. तो इफ़ यू थिंक कि वीडियो क्वालिटी के साथ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो देन थैंक यू सो मच. आई कैन कंटिन्यू विद दिस.
10% बैटरी में और कितना बोल सकते हैं. तो आई विल डू अ जेप्टो हॉल मे बी. आई एम रियली थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम. पर मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग जेप्टो ग्रोसरी देखना भी चाहोगे या नहीं. आई एम अ सिंगल गर्ल लिविंग ऑन माई ओन, अर्निंग माई ओन मनी, स्टडिंग, स्टूडेंट ऑल्सो, पेइंग माई होम लोन एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज़ माई स्टोरी इन अ नटशेल. तो अगर आपको लगता है आप मुझसे थोड़ा भी रिलेट कर पाओगे, मैं एक नॉर्मल इंसान भी हूँ. मेरे घर में भी आटा दाल चावल आता है. अगर आपको लगता है कि मैं क्या खरीदती हूँ, कैसे खरीदती हूँ, कैसे बनाती हूँ, तो you let me know. I will do a Zepto video. I just have a Zepto bag there. That's why I'm looking at it, and I know that's very distracting, but I have Zepto bag over there. I want to make a Zepto video because I'm so happy with their service. It is looking like it is a sponsored content, but it is not. I'm so sorry, but I would love to be sponsored by Zepto. Zepto, if you're listening, please sponsor me. I'm a regular shopper. कभी कभी तो 2-3 बार मैं शॉपिंग कर लेती हूँ. Anyway, I'm not talking about Zepto anymore. what else. बैटरी इज़ रनिंग आउट. कल बात करते हैं. ऐसे बैठ के बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो इफ़ यू हैव एनी टॉपिक, मेरे दिमाग में एक आइडिया है. किसी ने मुझसे पूछा था कि सना, हम अगर ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, लाइक वी आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, सो हाउ डू वी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़. ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, बिकॉज मैंने उस सिचुएशन में पढ़ाई की है. देखो एक यहाँ मच्छर भी है, तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कर दो. बेचारे ने फर्स्ट अपीयरेंस दिया है अपना. मैंने उस सिचुएशन में पढ़ाई किया है जहाँ मेरा ब्रेकअप हुआ था और आई वॉज मिजरेबल. एंड मैंने पढ़ाई किया है. आई वॉज अ टॉपर इन माई कॉलेज एंड आई डिड ऑल ऑफ दैट वाइल गोइंग थ्रू अ मेजर हार्ट अटैक, वाइल गोइंग थ्रू अ मेजर हार्ट ब्रेक. तो मैं रात भर रोती थी और मुझे लगता था कि ऐसे तो नहीं चलेगा. तो मैं सोचती थी कि माइट इज़ वेल जर्नल्स ही लिख लो. जर्नल्स हमारे असाइनमेंट्स होते थे बेसिकली, तो मैं वो लिखती रहती थी. और जब भी मुझे ऐसे पैंग्स ऑफ एंग्जाइटी होता था या जब भी मुझे याद आती थी, मुझे लगता था चलो एक बार ही स्टॉप कर लेते हैं, पता तो करे कि बंदा क्या कर रहा है. तो फिर मैं पढ़ने लग जाती थी. एंड आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ बिजी. तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था मेरे टॉप करने में बेसिकली, बट I just put my time to good use. So मैं इसके बारे में डिटेल तरीके से बात करना चाहती हूँ बिकॉज मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं. एंड आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगा एज अ टीनेजर और एट एनी एज व्हेन यू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक. It is very difficult to concentrate on work on studies, and especially if you're a student and if you mess up with your studies, then it actually messes up with the entire future. और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती. तो अगर मैंने कुछ सीखा है अपने यूथ में while going through a breakup, जो कि बहुत इनोसेंट लव अफेयर होता है, फिर आपका फर्स्ट ब्रेकअप होता है, फिर आप उसे हैंडल नहीं कर पाते, फिर लगता है अरे दुनिया तो ख़त्म हो गई. ऐसा नहीं होता. समटाइम्स इट इज़ ऑलवेज, most of the times it is for good actually. तो जिनका हो जाता है फर्स्ट लव टर्न्स इनटू मैरिज, हैट्स ऑफ टू देम, दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग. बट जनरली ऐसा नहीं होता है. और ऐसा नहीं हो पाता है तो हम उससे कैसे आगे निकले, ये बहुत बहुत चैलेंजिंग है. और उस वक्त आप किसी शेयर भी नहीं कर पाते हो. लोगों को चीज़ें समझ ऐसे लगता है कोई हमें समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अपना दुख बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है और सबका अपना दुख बड़ा होता है. जिस पे बीतती है उसे ही पता होता है. तो मैं उस बारे में बात करना चाहूँगी. हैविंग गॉन थ्रू दैट लेन एंड देन आई हैव taken your turn, come back, and I've come back really well, dude, really. So I would love to talk about that aspect of mine, that part, that life of mine. I will not be talking about my life in particular, but I'll be talking about the learnings that I took away from that experience that I had. And I was miserable because I'm a very emotional person and it took me years to come out of it, but I came out of it beautifully, and I think everybody does that. So that is one topic which is very close to my heart, जो कि जिसके बारे में मैं अक्सर कभी ना कभी बात करती हूँ, पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई करते वक्त परेशानी होती है. पढ़ने बैठ रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, फिर आप रोते रहते हो कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है. भैया एग्ज़ाम की कोई गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है. एक फेल रिलेशनशिप है, नथिंग एल्स, नॉट अ बिग डील. ऑनेस्टली आई कैन से एट दिस पॉइंट राइट नाउ इट इज़ नॉट अ बिग डील. So I would like to talk about that in detail. Zepto का मुझे बताना प्लीज़ कि should I do a grocery haul? Would you be interested to see आलू बैंगन भाजी तरकारी? If you're interested, I'll do that. So I think इतना ही टाइम 10 minutes का बैटरी मुझे दे रहा है. I'll see you in my next video. Take care. Love you. Bye guys. Bye. सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ मेरे चैनल को. Bye.